السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف اور زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جس میں بندہ دنیا میں رہ کر دنیا اور اہل دنیا، بیوی، بچے، اولاد، رشتہ دار، اقربا سے ہٹ کر اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے کچھ دنوں رہتا ہے۔ اسے شریعت مطہرہ میں اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے لیے مسجد شرط ہے۔ مسجد اس لیے شرط ہے کیونکہ جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی جانب لگاؤ، اس کی جانب انہماک اور توجہ مسجد میں ہو پائے گی، وہ دوسری جگہ نہیں ہوگی۔ اعتکاف کی تعریف علامہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ ان لفظوں کے ساتھ کرتے ہیں: الاعتکاف ہوا لزوم المسجد لطاعت اللہ سبحانہ وتعالی علی صفت مخصوصۃ بنیت مخصوصۃ وادلۃ مشروعیتہ الکتاب والسنۃ والاجماع۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص صفت اور خاص نیت کے ساتھ کچھ دنوں مسجد میں مکمل پابندی کے ساتھ حاضر رہنے کا نام شریعت مطہرہ میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ مثلا معتکف اعتکاف کے دوران مسجد ہی میں رہے، مسجد سے باہر نہ جائے، وہ کسی مریض کی عیادت کو نہ جائے، نماز جنازہ میں حاضر نہ ہو، بیوی کو ہاتھ نہ لگائے، اس سے ہم بستری نہ کرے، اور بھی دیگر ضرورتوں کے لیے وہ باہر نہ جائے۔ صرف جو خاص ضرورتیں ہیں، مثلا جو قضاء حاجت ہے، اس کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ یعنی اگر گاؤں کے کچھ لوگوں نے یہ اعتکاف کر لیا تو سب لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ اعتکاف اب کی بار انشاءاللہ الرحمن کل 14 مئی بروز جمعرات کو سورج نکلنے سے قبل معتکف مسجد میں داخل ہو جائے، اور پھر 30 رمضان کو جب سورج ڈوب جائے اس کے بعد معتکف مسجد سے باہر آ جائے، یا 29 رمضان کو اگر رویت ہو جائے تو رویت کے بعد معتکف مسجد سے باہر آ سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے معتکف جو ہے اس سال آدمی ایک یا دو لوگ جو ہے مسجد میں اعتکاف کر لیں، یہ کافی ہے۔ بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ہماری ماں و بہنیں اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف جیسے پہلے کر رہی تھی، اب کی سال بھی وہ اپنے گھروں ہی میں اعتکاف کریں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سی باتیں، زکوٰۃ کی فضیلتیں، زکوٰۃ نہ دینے کے تعلق سے جو وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، ان سب باتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ میں زکوٰۃ کی فضیلت اور وعید کے تعلق سے ایک آیت اور وعید کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فضیلت کے تعلق سے کلام مجید میں ارشاد فرمایا: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء
वल्लाहु वासिउन अलीम। यानी उन लोगों की कहावत जो लोग अपना माल राह खुदा में खर्च करते हैं उस दाना की है जिस दाने से 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने। इस यानी एक दाना से 700 दाने जिस तरीके से पैदा होते हैं, ऐसे ही जो शख्स 1 रुपया 1 पैसा अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसे एक के बदले में 700 बल्कि उससे ज़्यादा तक देता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है, जिसके माल को चाहता है बढ़ाता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और हिकमत वाला है। ज़कात ना देने के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह। यानी जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है और वो उस माल का हक़ अदा नहीं करते, उसकी ज़कात नहीं देते, उश्र नहीं देते, वो लोग ये ना समझें कि उस माल का हक़ अदा ना करना उनके हक़ में बेहतर है, बल्कि उनके हक़ में ये बहुत बुरा है। ये माल बरोज़े क़यामत उनके गले में तौक बनाकर डाला जाएगा। तौक के ताल्लुक़ से एक हदीस पाक भी सुनते चलें जो बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने माल दिया और उसने उस माल की ज़कात अदा नहीं की, उस माल को अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत गंजे सांप की शक्ल में पेश फरमाएगा और उस सांप का तौक उसके गले में बना देगा। वो सांप उसकी बाँछें पकड़ेगा, उस सांप के सर में 2 जुत्तियाँ होंगी। वो सांप कहेगा, अना कंजुक अना मालूक, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ, मैं तुम्हारा माल हूँ। इस तौर पर वो सांप उस ज़कात ना देने वाले को डसता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अच्छा सांप के ताल्लुक़ से बात आई तो उलमा लिखते हैं कि सांप जब 1000 वर्ष का होता है तो सांप के सर में बाल जमते हैं, और सांप जब 2000 वर्ष का होता है तो उसके सर से बाल सब गिर जाते हैं। ये होता है गंजे सांप का माना। बताइए, सोचें हम और आपके ये कितनी भयानक हम और आपके लिए सज़ा है, उन लोगों के लिए बिलखुसूस जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो अपने मालों को जमा करके रखते हैं, सोना चांदी को गिन गिन कर रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को आप खुशखबरी सुनाइए। ज़रा कलाम मजीद के इस अंदाज़ को देखें, बशीर का लफ्ज़ आया, खुशखबरी सुनाई। हालांकि जो आने वाली खबर है वो खुशखबरी नहीं है। वो खबर क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया, बिअज़ाबिन अलीम, ए महबूब लोगों को अज़ाब की खबर दीजिए। और अज़ाब भी कैसा अज़ाब? अलीम, दर्दनाक अज़ाब। और दर्दनाक भी कैसा, उसकी तफसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में आगे यूँ इरशाद फरमाया, यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारे जहन्नमा, जिस दिन इस माल को गर्म किया जाएगा जहन्नम की आग में, फतुकुआ बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और फिर इस माल से ज़कात ना देने वालों की पेशानियाँ, उनकी करवटें, उनकी पीठें दागी जाएंगी। हादा मा कनज़्तुम ले अनफुसिकुम, ये वही माल है जिसको तुमने अपने लिए जमा करके रखा है। फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो जिस माल को तुमने जमा करके रखा है अब उसका मज़ा चखो। कितनी बड़ी वईद है, कितनी बड़ी सज़ा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि 1 रुपया दूसरे रुपया के ऊपर नहीं रखा जाएगा, ना कोई अशरफी दूसरी अशरफी के ऊपर रखी जाएगी,
बल्कि ज़कात ना देने वाले का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि हर पैसा अलग अलग जगह में दाग देगा, हर अशरफी अलग अलग जगह में दाग देगा। मौला ताला हम सबको इस अहम फरीज़ा को अदा करने की तौफीक दे। ज़कात के मसरफ़ के ताल्लुक़ से एक बात मैं आखिरी बात यहाँ बता दूँ आपको। जिस आदमी के पास मसरफ़ नहीं बल्कि ज़कात जो है किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है, जिस आदमी के पास 200 दिरहम चांदी की मालियत, 200 दिरहम चांदी बराबर होती है 612 ग्राम 36 पॉइंट यानी 36 मिलीग्राम। फिर एक बार समात आप लोग कर लें, 200 दिरहम चांदी बराबर 612 ग्राम चांदी 36 मिलीग्राम चांदी। 612 ग्राम 36 मिलीग्राम चांदी का जो पैसा मौजूदा वक्त में बनता हो, 30,000 32,000 जो भी बनता हो, ये जिस भाई के पास भी है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। और कोई ज़रूरी नहीं कि इतनी हमारे पास चांदी ही हो, चांदी सोना, हमारे पास जो बैंक बैलेंस है रुपया पैसा या कुछ और हमारे पास जमा पूंजी, इतनी मालियत जिस मुसलमान भाई के पास भी है, और होने के लिए भी पूरे साल में इतनी मालियत इतना पैसा रहना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि साल के अव्वल और आखिर में सिर्फ इतनी मालियत इतना पैसा हमारे पास रहना ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए काफ़ी है। ये कम अज़ कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी माल हो देना। ज़कात किसको है, उसके बहुत सारे मसारिफ़ हैं, मुसलमान, फ़कीर, मोहताज, यतीम और दीगर ज़रूरतमंद हैं। तफ़सील के लिए फिर आप हज़रात दारुल जायज़ या किसी और से रब्ता कायम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।